ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଧ୍ୱନି ଲିପି ମାତ୍ରା ଫଳା ଓ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାଷା ହେଉଛି ମଣିଷର ମୁଖ ନିଃସୃତ ନିୟମବଦ୍ଧ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ସମାହାର। ମଣିଷ ମୁହଁରୁ ଯାହା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କହେ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମାହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥାଏ। ତାର ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ମଣିଷ ତାର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜୀବଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି। ଯେହେତୁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଜୀବଜଗତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ତାର ମନର ଭାବନାକୁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପ ଦିଏ ଓ ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ମଣିଷ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି ସେ ସବୁକିଛି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ଭାଷା ନଥିଲେ ମଣିଷ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ହୁଅନ୍ତା। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନିଜ ଚିନ୍ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଅନ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଏସବୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିଜର ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା ବି କୁହନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଚୀନ ଜର୍ମାନୀ ଫରାସୀ ଜାପାନୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ପୃଥିବୀର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଶେଷ ଆଦର ଥିଲା। ବେଦର ଭାଷା ଥିଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ। ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଶେଷ ଆଦର ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବେଦର ଭାଷା ଯେଉଁ ବେଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଭାଷାକୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ଭାଷା। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଭାଷା ବା ସର୍ବପୁରାତନ ଭାଷା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ହେଉଛି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ତିନି ଗୋଟି ସ୍ତର ଦେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଯେଉଁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ପୁଣି ତିନି ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ତିନି ଗୋଟି ସ୍ତର ହେଲା ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଯେଉଁ ତିନିଟା ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରାକୃତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା ଅପଭ୍ରଂଶ। ଅପଭ୍ରଂଶ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଛି ସେ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ନମୁନା। ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ରୂପରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ବା ଲେଖା ହୋଇଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ରଚନା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସାରଳା ଦାସ ତାପରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧୁସୂଦନ ଓ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ଭାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଧୁନିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ମାନେ ପୂର୍ବ ଆଦିକାଳରୁ ଆଧୁନିକ କାଳ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି।
तापर सेकेंड पॉइंट है कौन भाषार रूपरेख। भाषा को साधारण भाव में दुई गोटी भाव में विभक्त कर जाई थाए। एक नंबर है कौन कथित, द्वितीय है लिखित, दुईटा भाग में भाषा को विभक्त कर जाइछि। आमे जेतेबेले अन्य मान सह कथबार्ता करी निजर भाव विनिमय करूँ ताहा हेउछि कथित रूप। कथित माने कथबार्ता माध्यम रे आम निजर भाव को प्रकाश करिबा। किंतु आमे जेतेबेले पत्र पत्रिका और पुस्तक माध्यम रे अन्यर विचार और चिंताधारा जानिबा को पाइथाउ किंबा कोनोसी व्यक्ति को चिठी लेखु ताहा हेउछि भाषार लिखित रूप। कथित लिखित, कथित माने आमे जा कहू, लिखित माने आमे जोटा लेखिकी प्रकाश करूँ बा लेखा माध्यम रे किछि जानो ताको लिखित कहा जाए। रामायण, महाभारत, भागवत प्रभृति प्रसिद्ध ग्रंथ हेउछि लिखित भाषार निदर्शन। ए सब लेखा हेछि तो एगुड़िक होछि कोन लिखित भाषार उदाहरण। पृथ्वी रे प्रत्येक वस्तु जेपरि परिवर्तनशील भाषा मध्य सेहीपरि परिवर्तनशील। एही परिवर्तन प्रथमे भाषार बाह्य स्तर रे देखा दिए और परे एहा अंतर्निहित स्तर रे आत्मा प्रकाश करे। प्रथमे जेपरि पृथ्वीर विभिन्न जिनिस परिवर्तनशील सेपरि भाषा मध्य कोन परिवर्तनशील। प्रथमे बाह्य स्तर रे बाहर प्रथमे लोक माने कहबा माध्यम रे किछि परिवर्तन हुए, तापर ताहा कोन हुए लेखा माध्यम रे मध्य प्रकाश पाए। एहीपरि धीरे धीरे हेकि भाषा परिवर्तन हो जाए। ध्वनि और शब्द भाषार बाह्य स्तर होला बेले अर्थ हेउछि भाषार अंतर्निहित स्तर। ध्वनि और शब्द होला तले भाषार जदि बाह्य स्तर होला माने ध्वनि कहिबे हां तापर कोन हुए लेखा हुए से शब्दर अर्थ कोन सेटा होछि कोन भाषार अंतर्निहित स्तर बा भीतर स्तर। एही परिवर्तन शीघ्र हुए कथित भाषा रे। मनुष्य कहिबारे प्रथमे परिवर्तन होइथे तापर लेखिबारे परिवर्तन हुए, किंतु लिखित भाषा रे परिवर्तन पई अनेक समय लागे। एही परिवर्तन पई अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण गुड़िक दायी। जो भाषार लिखित भाषार जो परिवर्तन हुए तापे विभिन्न जिनिस दायी होता है, जेपरिक सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण। एही परिवर्तन जोगु गोटे भाषार कालक्रमे अनेक भाषा और उपभाषा सृष्टि हुए। गोटे भाषा सहित अनेक भाषार शब्द आसी मिसी जाए। ओडिया भाषा संस्कृत सृष्टि होइछि और एथिरे कालक्रमे आदिवासी, द्राविड़, जावनिक गोष्ठीर भाषा और यूरोपीय भाषा गोष्ठीर प्रभाव रही। प्रथमे तो ओडिया भाषा संस्कृत आसीथिला, किंतु कोन होला धीरे धीरे ओडिया भाषा सहित अन्य भाषा मध्य मिसी गला। तापर 3 नंबर पॉइंट पढ़िबा कोन उपभाषा और आंचलिक भाषा। अंचल भेदरे रहिथिबा भाषार रूप को आंचलिक भाषा नाम रे अभिहित करा जाए। भाषार लिखित रूप एक प्रकार होइथिले मध्य अंचल भेदरे एहा भिन्न भिन्न प्रकार रे कथित हुए ना कि विभिन्न अंचल अनुसार भाषार रूप भिन्न भिन्न प्रकार होइथे। आम ओडिशा प्रदेश रो मानक भाषा ओडिया, मात्र पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, उत्तरांचल भेदरे भाषार कथित आंचलिक रूप मध्य रही। जेहेतु आमर ओडिशार भाषा कौन ओडिया भाषा, किंतु आमर अंचल अनुसार दक्षिणांचल, उत्तरांचल, पश्चिमांचल ए सब अंचल अनुसार मध्य आमर ओडिया भाषा मध्य किछि परिवर्तन होइछि। तापरे 4 नंबर पॉइंट आम कौन पढ़िबा लिपि। मनीष जो भाषा रे कथबार्ता करे ताकू चिरस्थायी करिवार प्रचेष्टा मध्यरो लिपिर जन्म। मनीष केवल कथबार्ता कले तो से भाषार चिरस्थायी हो पार ना, ताकू लेखा निहाती आवश्यक। से लेखार रूपरेखा को आम लिपि बोली कहू। लिपि माध्यम रे मुख उच्चारित ध्वनि को सांकेतिक रूप दि जाए। मन रखा हेबो जे कौनसी एक भाषा रे लिपि आग सृष्टि होई न थाए। इटा हमको मन रखा पड़ो जे कौन भाषा प्रथमे लेखा हुए नहीं, प्रथमे कहती लोक मैंने कहला परे तापरे लेखा जाए। भाषा प्रथमे मौखिक रूप निए, परे लिपि संकेत माध्यम रे एही कथित रूप को चिरस्थायी करी रखिबार व्यवस्था करा जाए। प्रथमे मौखिक रूप माने कौन प्रथमे कह जाए, तापर ताको सांकेतिक रूप दे लेखा करी बा लेखिकी से जिनिस को आम चिरस्थायी रूप में रखि था रखिबार व्यवस्था करा जाए। लिपि सृष्टिर इतिहास विश्लेषण कले जना जाए जे अशोक समय रे भारत वर्ष रे
दुई प्रकार लिपि प्रचलित थिला। आम यदि लिपि विषय बेसी जाना चेष्टा करवा तो प्रथम आम मन को आसे अशोकर जो शिलालिपि लिखी सेटा ही प्रथम आम मन को आसथिबो। से दुई प्रकार लिपि प्रचलित करथिले, गोटे ब्राह्मी लिपि अन्यटी खरष्टी। अशोकଙ୍କ अनुशासन गुड़िक मध्यरु केतेक ब्राह्मी और केतेक खरष्टी लिपि खोदित होइछि। क्रमे खरष्टी लिपिर प्रचलन बंद हैला और ब्राह्मी लिपिर प्रसार लाभ कला। अशोक दुई प्रकार लिपि प्रचलन करथिले, खरष्टी और ब्राह्मी, किंतु धीरे धीरे कौन होइछि खरष्टी लिपि बंद हो जाइछि और ब्राह्मी लिपिर प्रचार लाभ होइछि बा ब्राह्मी लिपि प्रचलन हैला। उणा अधिके भारतवर्षर लिपिमाला एही ब्राह्मी लिपिरु सृष्टि होइछि। ब्राह्मी लिपि अशोक, खारवेल, गुप्त राजत्व, शरद्भव और समवंशी राजत्व काल दे कुटिल और सूक्ष्मकणी रूप धारण करी मागधी लिपि परिणत होइछि। एकादश रु चतुर्दश शताब्दी मध्य ओडिया लिपि दक्षिण भारतीय लिपिर प्रभाव में गोलाकृत होइछि। धीरे धीरे ओडिया लिपिटा कौन ओडिया लिपि ओडिया अक्षर गुड़िक सब गोल आकृतिर लिखा जाए। आधुनिक ओडिया लिपिर दुई प्रकार लिखन पद्धति रही, गोटे साधारणी और अन्यटी करणी। ओडिया लिपि जो लिखा जाउछि ता दुई प्रकार रही, गोटे हूँ साधारणी लिपि और गोटे करणी लिपि। जनसाधारण लेखा और पुस्तक मुद्रण प्रभृति रे साधारणी लिपिर व्यवहार देखा मिलता है। तालपत्र और पोथी मानकरे करणी लिपिर व्यवहार देखा मिले। जो साधारण लिपि और करणी लिपि रहिला, आम जो बही पढ़ुचे से सब साधारण लिपि लिखाई, किंतु जो तालपत्र जो लिखा जाए से गुड़ा सब पोथी गुड़ाक तालपत्र जो पत्र गोटे लुहा कंटा को कणा कर जो लिखती से करणी लिपि लिखा जाए। सेटा साधारण लिपि गोल गोल कर लिखले से पत्र चिरी जीव तो लेखा संभव हेनी, तो सीटा लिखा जाए से जो लिपि लिखा जाए तालपत्र पोथी गुड़ाक करणी लिपि बोली कहुए। तापरे 5 नंबर पॉइंट पढ़िबा ओडिया ध्वनि और वर्णमालार स्वरूप। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और अर्थ ए सबु जेकोसी भाषार विभिन्न विभाग। शब्दर प्रकाश माध्यम दुईटी, गोटे है ध्वनि अन्यटी है वर्ण। शब्द प्रकाश कर दुईटी माध्यम रही, एक नंबर मन रख, एक नंबर हूँ ध्वनि, द्वितीय नंबर हूँ वर्ण। शब्द हूँ ध्वनि मानकर समाहार। यही ध्वनि गुड़िक है मुख उच्चारित सार्थक ध्वनि। अन्य भाव में कहवाक गले ध्वनि रूपे शब्द उच्चारित हुए और वर्ण रूपे लिखित हुए। आम जो उच्चारण करें ध्वनि कह जाउछि, जो लिखुचे आम शब्द गुड़िक आम वर्ण बोली कहुचे। ध्वनिर लिखन संकेत को लिपि और अक्षर नाम चिन्हित कर जाए। ध्वनिर लिखन संकेत बा ध्वनि जोटा लिखा जाए ताको कौन कह लिपि कह जाए, अक्षर गुड़ाक चिन्हा जाए। भाषा व्यवहृत वर्ण समष्टि हेउछि वर्णमाला। वर्णर समष्टि को आम वर्णमाला बोली कहू। भाषा क्षेत्र में लक्ष्य करा जाए जे केतेक भाषा ध्वनि संख्या कम थिला बेले अक्षर संख्या बेसी, आउ केतेक भाषा ध्वनि संख्या बेसी थिला बेले अक्षर संख्या कम। प्रथमटीर उदाहरण हेउछि ओडिया भाषा। मन रखिया को हेपछे जनकर उच्चारण सहित अन्य मानकर श्रवण संपृक्त, माने जणे जहाँ उच्चारण करिवो अन्य माने मध्य ताको सुनिबे। पुणी जनकर लिखन सहित अन्य मानकर पठन मध्य संपृक्त, जणे जोटा लिखिबो अन्य माने ताको मध्य पढ़िबे, तो परस्पर सहित तार संपर्क रहिला। उच्चारण और लिखन हेउछि भाषार प्रकाश पद्धति, श्रवण और पठन हेउछि यार ग्रहण पद्धति। तेणु भाषा उपरोक्त 4 गोटी पद्धति नहीं संप्रसारित हुए। प्रत्येक भाषा रे ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य विश्लेषण पर जो नियम बा सूत्र ग्रंथ रचित होता है ताहाको सही निर्दिष्ट भाषार व्याकरण भावे ग्रहण करा जाए। व्याकरण भावे काहाको ग्रहण करा जाए से जिनसटी मन रख। प्रत्येक भाषा रे कौन ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद्य, पद और वाक्य विश्लेषण पर नियम किसी नियम रही, नियम अनुसार जहाँ रचित होता है से भाषार वाक्य माने से भाषा को तार से भाषार व्याकरण बा ताहाको से निर्दिष्ट भाषार व्याकरण बोली कह जाय थाए।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସମୂହକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ତା ଧ୍ୱନି ସମୂହକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକରେ ହେଲା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଗଳଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ ବାଧା ନ ପାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ନ ଯାଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଆସେନି, ସିଧା ସିଧା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 8 ଗୋଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଓ, ଐ ଆଉ ଔ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅ, ଇ, ଉ, ଏ, ଓ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଶୌଦ୍ଧ ବା ମୌଳିକ ସ୍ୱର କୁହାଗଲା ବେଳେ ଐ, ଔକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କୁହାଯାଇଥାଏ, ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଇ, ଉ ଆଉ ଉ ଏ ତିନୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ଥକ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଇ ଆଉ ଉ ଆଉ ରୁ ମାନେ ଦୁଇଟା ରହୁଛି ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ, ତ ଇ ବୋଲି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣତଃ କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାର କୌଣସି ସାର୍ଥକ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଇ ଆଉ ଉକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଇ ଉ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ରୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ରୁ ଆଉ ରୁ ଭାବରେ ଏହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏହାର ସ୍ୱରସତ୍ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ରୁ ରୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ଉ ଉ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ତ ତାର କୌଣସି ସାର୍ଥକ ସ୍ୱର ବା ସାର୍ଥକ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଓ, ଐ, ଔ এই 8 ଗୋଟି ହେଲା ଉଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଉଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେଇଟା 8ଟି ରହିଛି। ଆଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11ଟା, ଯେମିତିକି ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ରୁ ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପଢ଼ିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବାୟୁର ଗତିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ରହିଥାଏ। ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ ବା ସେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାଧା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ। ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରର ଦୁଇ ଅଂଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବାୟୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ରହି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବାୟୁ ଯଦି ଏହି ବାଧା ସହିତ କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଘଷି ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବିଧି ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି, ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି, ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି, ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି, ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଧ୍ୱନି ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଆଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ବହୁତ ଜରୁରୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯେମିତି ଦେଖ, ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଜାଣିପାରିବ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ତୁମର ମୁହଁରେ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ବା ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ମୁହଁ ତୁମର କେଉଁ ଅଂଶ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି। ପ, ଫ, ବ, ଭ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଓଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ଓଠଟା ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି, ଓଠକୁ ଓଠ ବାଜୁଛି। ତ, ଥ, ଦ, ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦନ୍ତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ତୁମେ ନିଜେ ତ, ଥ, ଦ, ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଦେଖ ତୁମର ଜିଭ ସହିତ ଦାନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବ। ଟ, ଠ, ଡ, ଢ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଅନ୍ତ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ। ଟ, ଠ, ଡ, ଢ। କ, ଖ, ଗ, ଘ କଣ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। କ, ଖ, ଗ, ଘ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ? এই ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ କଣ୍ଠରୁ ଯେପରି ଆସୁଛି।
ओडिया नासिक्य ध्वनि नासिक्य ध्वनि नासिक नाक नाकरू को ध्वनि गुड़िक आसूसी ण व न आ म ए चार्टा नासिक्य ध्वनि संघर्ष ध्वनि होची स आ ह माने संघर्ष करची ओडिया स्पर्श संघर्ष ध्वनि है च छ ज छ ओडिया लोड़ित ध्वनि है र पार्श्विक ध्वनि होची कौन ज ळ आ ल दुईटा जाक पार्श्विक ध्वनि ओडिया उत्क्षिप्त ध्वनि होची ड आ ढ आ ओडियार अर्धस्वर होची य आ ओ तापरे मनी रखटा मध्ये टिके पढ़ बहुत जरूरी अटे मन रख अर्धस्वर गुड़िक व्यंजन ध्वनि ठारू बेसी मुखर और स्वर ध्वनि ठारू कम मुखर ख नंबर है ओडिया रे क ख ग घ ङ च छ ज छ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ब य र ल ल व स ह एपरि 33 व्यंजन ध्वनि रूपे उच्चारित हुए आउ जोड़ा छाड़ीगला से गुड़ा देख व निय ज स आ विसर्ग ये 6टी ध्वनिर मौलिक उच्चारण स्वाभाविक कथन नहीं ध्वनि मानकर विभागीकरण परी ओडिया भाषा में व्यवहृत वर्णमाला को दुई भाग में विभक्त करमि ध्वनि मान को आम दुईटा स्वर ध्वनि व्यंजन ध्वनि दुई भाग में विभक्त कले वर्णमाला को सेमती दुई भाग में विभक्त एक है स्वर वर्ण दुई है व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण क्या कहुए कौ कौ अक्षर गुड़िक अ आ इ उ रु ए ऐ ओ ये 11टी स्वर वर्ण ओडिया भाषा में व्यवहृत रु और र व्यवहार ओडिया भाषा नथिबाको ताहाको स्वरवर्ण पर्यायर आउ ग्रहण करा जाय नाही तापरे व्यंजन वर्ण ओडिया भाषा रे देउ 39टी व्यंजन वर्ण रहिछि सेगुडी को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि व्यंजन वर्ण हमरा 39टी से 39टी व्यंजन वर्ण को मध्ये कोन दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे होछि वर्गीय व्यंजन आ गोटे होछि अवर्गीय व्यंजन तबे वर्गीय व्यंजन गुडी के प्रथमे देखो वर्गीय व्यंजन है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म एपरी 25 गोटी वर्ण वर्गीय व्यंजन अंतर्गत देख भाग करके लिखा है क वर्ग रे आसला क ख ग घ ङ सेटा कंठ वर्गीय च वर्ग रे छ छ ज झ ञ तालव्य वर्ग तापरे ट वर्ग रे ट ठ ड ढ ण हला मूर्धन्य वर्ग त वर्ग रे त थ द ध न हला दंत्य वर्ग प वर्ग रे हला प फ ब भ म अष्ट वर्ग तेबे एहा मध्यरु नियर व्यवहार ओडिया भाषा रे सीमित बहुत कम हम ओडिया भाषा रे नियर व्यवहार करा जाय तापर हछि अवर्गीय व्यंजन हला कोन अ ज य र र ल व स स ह क्ष आ अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु ये जो 14टी है एगुड़ी हूँ कौन अवर्गीय व्यंजन तो मन रख ओडिया भाषा 11 गोटी स्वर वर्ण 39 गोटी व्यंजन वर्ण एहीपरि सर्वमोट 50 गोटी वर्ण व्यवहृत होउछि एही 50 गोटी वर्ण पई अ आ इ उ रु रु ए ऐ ओ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ज य र ळ ल व स स स ह क्ष अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु माने 50 टा वर्ण एहीपरि 50टी स्वतंत्र अक्षर लिपिमाला रूपे ओडिया रे व्यवहृत हुए क समिसे क्ष होइथिबा ओ क्ष भाव रे उच्चारित एही युक्ताक्षरटी को ओडिया लिपिमाला स्वतंत्र वर्णर मर्यादा मिली क्ष को है तापरे पढ़िबा मात्रा और फड़ा स्वरवर्णर अव्यतीत प्रत्येक स्वरवर्णर एक एक सांकेतिक चिन्ह देखा मिले अ गोटे स्वरवर्ण जहाँ कि कौन सांकेतिक चिन्ह ना यहाँ बेस जरूरी मन रखी था अस्वरवर्णर सांकेतिक रूप नथिबा कारण होछि यह प्रत्येक व्यंजन वर्ण सहित मिसी करि थाए से और कौन सांकेतिक वर्ण नहीं जमती क प्लस क ख प्लस ख ग प्लस ग घ प्लस घ माने प्रत्येक अक्षर सहित सी मिसी जाए मन रखा हेब जे स्वरवर्णर सांकेतिक रूप
मात्रा नाम परिचित। आमे ताको कार बोली कहीता। कार मान कौन आकार ईकार एमती कार बोली कहूचे। तो स्वरवर्णर सांकेतिक रूपटा मात्रा नाम ही परिचित अटे। व्यंजन वर्ण गुड़िकर यही मात्रार व्यवहार होता है। तले स्वरवर्ण तार सांकेतिक रूप बा मात्रा गुड़िकर उदाहरण दिगला। देख दि जाए उदाहरण गुड़िक माने कौ स्वरवर्णर तार मात्रा गुड़िक केमती अ फास्ट अर तो कौन से ना मात्रा आर ही आरंभ हो। आ स्वरवर्णर कौन आकार आकार जेकोसी लिखिपर बा बोली लिखाई ईकार हम पी थी जेकोसी ईकार शब्द अक्षर लिखिपर। ईकार दुईटा हर्षईकार दीर्घईकार तापर उकार हर्षकार दीर्घकार तापर हूँ आमर रुकार तापर एकार ओकार ओकार ओकार। हर्षईकार संकेत दिगला बेले केवल ख थ ध वर्ण तले किंबा उपरे हर्षई और तले हेले हर्षईकार अन्य वर्ण उपरे संकेतिक चिन्ह संकेतटी दि जाए। माने ख आ थ ध तीनटा अक्षर आम हर्षईकार तले दे परिबा। तापर युक्त व्यंजन व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसी रहिले युक्त व्यंजन वर्ण सृष्टि हुए। ओडिया भाषा रे प्रचलित युक्त व्यंजन मध्यरु केते उदाहरण दिगला। जेमती क युक्त त च निय हेले कौन हम च हम ण ट हेले ट हम ज निय हेले ज म ब हेले ब म भ मिसिले भ स च मिसिले च स ट र मिसिले कौन वस्त्र। युक्त व्यंजनर व्यवहार को आम तीन गोटी दृष्टिकोण विचार करि। प्रथम है कौन प्रथम व्यंजन वर्णर पूर्ण रूपे तले द्वितीय व्यंजन वर्णर संक्षिप्त रूप को व्यवहार कर जाए। गोटे व्यंजन वर्ण पूर्ण रूपे लिख बड़ कि लिख आ गए व्यंजन वर्ण ता तले लिखिपर जमी लिखाए देख ट ढ स्म इत्यादि। द्वितीय है कौन प्रथम व्यंजन वर्ण पूर्ण रूप रही द्वितीय व्यंजनर सांकेतिक रूप दि जाए। प्रथम व्यंजन वर्णटा पूर्ण लिख पूरापूरी लिख ता तल को जो आ गए आम जो सांकेतिक रूप में द्वितीय व्यंजन वर्ण लिखा जमी क त फड़ा क तो दुई लिखले हम सेमती मरे भ फड़ा हम कि मरे ब फड़ा तो कौन म लिखुचे ता तले को ब फड़ा दि जाए। म लिखि मरे भ फड़ा दि जाए न लिखि न तले थ फड़ा दि जाए। सांकेतिक रूप गुड़िक देख दि जाए सब। ग नंबर युक्त व्यंजनर आरंभ जदि र रहे तेबे तार संकेत रूप को रेफ हुए। रेफ संकेतटी व्यंजन वर्णर कौन ऊपर दि जाए। तर्क अर्क महार्ग दीर्घ सब रेफटा आम सब ऊपर लिखा जाए सर्ग मर्म इत्यादि। प्रथम व्यंजन भाव न स सहित जदि त और र युक्त हुए ताहले से युक्त व्यंजन को स्त्र किंबा तो भाव लिखा जाए। यह स्त्र और त्र भाव लिखा जाए। जेमती कि लिखाई देख वस्त्र तंत्र मंत्र। युक्त व्यंजनर संक्षिप्त रूप को आम फड़ा बोली कही था। जमीती र फड़ा म फड़ा एमती फड़ा गुड़िक युक्त व्यंजन सांकेतिक रूप ये केते गुड़ा सब माने युक्त व्यंजन सांकेतिक रूप देछि। फास्ट देछि कौन क फड़ा तापरे र फड़ा ड फड़ा ढ फड़ा सब विभिन्न फड़ा गुड़िक सब देछि। त फड़ा तापर थ फड़ा ब फड़ा भ फड़ा कुंभ तापर ण फड़ा न फड़ा म फड़ा र फड़ा ल फड़ा र फड़ा और य फड़ा विभिन्न फड़ा गुड़िक देछि। तापर देख कौन देछि म सहित वो वर्ण संयुक्त हेले ब हुए किंतु अन्य व्यंजन वर्ण यह फड़ाटी संकेतटी संयुक्त हेले यह वो फड़ा भाव उच्चारित हुए। केवल म तले ब फड़ा हेले ब बोली उच्चारण हम किंतु अन्य जो कौट लिखा से ओ फड़ा बोली उच्चारण करपरी स्वाद द्वार अन्य माने शब्द गुड़िक केमती उच्चारण होछि देख। ओडिया भाषा रे व्यवहृत होथुबा आउ केते गुड़िए युक्त व्यंजन संपर्क में एठारे उदाहरण दिगला। से गुड़िक अनुसार दिख सब कन कं खं गं घं तापर द आउ ध तापर प फड़ा प आउ म फ फड़ा फ ज्ञ छ छ निय तापर ट च एगुड़िक सब जाक कौन युक्त व्यंजन है लिखाई।
र आ भ आ द आम जो कहे बड़ भ बड़ ध जो कहे युक्ताक्षर युक्त व्यंजन लिखाई ध भ क्ष इत्यादि। केतक शब्द को एभली युक्त व्यंजन साहाय्य न नहीं पृथक पृथक वर्ण साहाय्य हलंत जोगे लिखा जाई पारे। माने केतरा शब्द मध्य आम युक्त व्यंजन उदाहरण जदि न नवा ताले आम कौन करवा हलंत देकी शब्द गुड़िक लिखिपर। उदाहरण केतरा देइछि उद्भव अबल उत्कन्न उत्कल उत्सर्ग उत्पात प्रभृति माने हलंत देकी शब्द गुड़िक आम लिखिपर। तापर हूँ कौन ओडियार शब्दावली अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्ण किंबा वर्ण समष्टि को शब्द कहुए। मन रख गोटे अर्थ प्रदान कर से वर्णटा किंबा किसी वर्णर शब्द वर्ण माने मिसिकी रही वर्णर समष्टि को आम शब्द बोली कहवा। अर्थबोध आनीपार नथिबा वर्ण समष्टि केबे शब्द पदवाच्य नुहति। उदाहरण देख माने कौन से अर्थ अनुत जमी कम अच आम कहीदेवा तो से किसी अर्थ ना तो सहीटा आम गोटे शब्द बोली कहीपर नहीं। उदाहरण मध्य प कर बी ग स एगुड़ी माने कौन से अर्थ भी आसुनी कौन शब्द एगुड़ी आम के शब्द बोली कहबानी। शब्द जिते वाक्य व्यवहृत हुए ताको पद बोली कहुए। शब्द होची भाषार बाह्य स्तर और तार अर्थ होची भाषार अंतर्निहित स्तर। शब्द होची बाहर स्तर और तार अर्थ होची कौन भीतर स्तर बा अंतर्निहित स्तर। तापरे तत्सम शब्द पढ़ा। तत्सम होची ओडिया भाषार शब्द भंडार को 4 गोटी प्रधान भाग में विभक्त करा जाय थाए। सेगुड़ी हला तत्सम शब्द तद्भव शब्द वैदेशिक शब्द और देशज शब्द। तत्सम शब्द गुड़िक अविकल भाव में संस्कृत आनीत तत् और सम तत्युक्त सम तत्सम माने संस्कृत रे जहाँ थी से शब्द गुड़िक ओडिया आसे। यार अर्थ होची पूर्वर अर्थात संस्कृत रे शब्द गुड़िकर आकृति जेपरी थिला एबे ठीक सेहीपरी अछि। केते गुड़िए तत्सम शब्दर उदाहरण देइछन्ति अहि अग्नि अनल करुणा फल पिता नास्तिक षष्ठी राष्ट्र विषय सत्य सुंदर इत्यादि। तत्सम शब्दर अन्य गोटे ना अछि ताहा हला साधु शब्द बा संस्कृत शब्द। तापरे तद्भव तद्भव शब्दर अर्थ है कौन तहिरु उद्भव अर्थात संस्कृत जात। आम भाषा एपरी केतक शब्दावली रही जहाँ संस्कृत भाषार सृष्टि हुई अविकल भाव में न रही प्राकृत और अपभ्रंश स्तर दे आसला बेले सेगुड़िकर स्वरूप में परिवर्तन देखा जाइए। माने धीरे धीरे से तद्भव माने तद्भव माने कौन संस्कृत तार मूल रूपटा आसी किंतु जिते शब्दटा आस्ते आस्ते विस्तारित होती तार कौन किसी परिवर्तन हो जाइए से गुड़िक तद्भव बोली कहुई। यही परिवर्तन फल मूल शब्द गुड़िकर उच्चारण और लेखन पद्धति बदली जाइए। उदाहरण किसी देख घृत घृतरु आम शब्द आसी परिवर्तन ही घी बोली हो। नगर रु नर भगिनी रु भौणी श्रृगालु शियाल पुत्रु पुओ मातारु माँ मूर्तिकारु माटी इत्यादि एमती बहुत गुड़ाए शब्द अच्छे। तापर देशज शब्द एपरी केतेक शब्द रही जहाँकि समयक्रमे जनसाधारण द्वारा सृष्टि होता है सेगुड़िक भाषा काल काल धरी प्रचलित होबार लगी। आहरी मध्य केतेक शब्द आदिवासी भाषा और द्राविड़ भाषा मानकरू आसी लोकमुखर प्रचलित होता है। किसी भाषा लोक मानक मुखर देशज भाषा माने जो अंचल लोक से माने किसी भाषा कही जहाँकि प्रचलित होची ता सहित आमर देशर प्राचीनतम आदिवासी द्राविड़ और आर्य मान किसी भाषा आसी आ किसी आदिवासी भाषा मिसी ये सब गुड़िक देशज भाषा। देशीय लोक बा साधारण जनतार भाषा यह सब व्यवहृत होता देशज शब्द बा देशीय शब्द नाम अभिहित कर जेहेतु देशीय लोक बा साधारण लोक मैंने ये भाषा गुड़िक व्यवहार करती तो सीटा कौन है देशीय शब्द रूपे अभिहित होती। किसी उदाहरण दि जाइए अंटी आंट उई खड़ टापरा खपरा फाउड़ा धकड़ टिंक कुला ओरा चाल झाटुआ प्रभृति की शब्द आउ किसी द्राविड़ शब्द उदाहरण देती कौन चुआ चितो आरिसा अड़ा एंडुरी तोटा। आदिवासी शब्द किसी उदाहरण देख ताटिया पाइटी ढोल पेंट अटेई प्रभृति।
यार उदाहरण। तापरे पढ़िबा वैदेशिक शब्द। विदेशी भाषार आगत शब्द समूह ओडिया भाषार शब्द भंडार को मध्य समृद्ध करिछि। एही वैदेशिक भाषार शब्द गुड़िक जावनिक शब्द इंग्राजी और पोर्तुगीज शब्द रूपे विभक्त करा जाय पारिबो। इतिहासରୁ जणाଯାଏ जे अफगानिस्तान तुर्की इराक प्रभृति देशर मुसलमान शासक माने भारतवर्ष रे शासन करथिले। भारतवर्ष रे विभिन्न मुसलमान शासक माने शासन करथिले। तुम इतिहास बही पढ़िले जानि परथुबो। ओडिया भाषा रे पारसी और अरबी शब्दावली प्रवेश कला 16 शताब्दी परठारु। एही समय ठारू प्राय 19 शताब्दी मध्य भाग जाए ओडिशा रे शासन कार्य मुख्यतः पारसी भाषा रे चलीथिला। तेबे एबे मध्य कोर्ट कचेरी प्रभृति रे शासन कार्य रे अरबी और पारसी शब्दावलीर प्रभाव देखा मिले। जेहेतु बहुत दिन जाए पारसी भाषार प्रचलन चलता एबे मध्य कौन कोर्ट कचेरी मध्य से भाषा गुड़िकर प्रचलन देखा मिले। तेबे केतेक मूल अरबी पारसी और तुर्की शब्द ओडिया भाषा रे तार प्रचलित रूप दिगला। किसी उदाहरण दि जाइए देख। आईन आईन होची पारसी शब्द ओडिया रे आईन होची। कैफियत तार माने पारसी शब्द तार ओडिया होची कैफियत। खाबिद तार ओडिया शब्द होची खाउंद। कुर्ता होला ओडिया शब्द कुरुता। अखतियार ओडिया शब्द होला अख्तियार। कुर्क ओडिया शब्द होला कोरख। खातर माने कौन खातिर बा खातर। इस्तबल ओडिया शब्द होला अस्ताबल। एबे पढ़िबा ओडिया भाषा रे इंग्राजी शब्द। 1803 मसीह रे इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार कले। 19 शताब्दी मध्य भागर ओडिशार शासन कार्य सहित स्कूल कॉलेज शिक्षादान माध्यम भाव इंग्रेजी भाषार प्रचलन है। जेतेबेले 1803 मसीह इंग्रेज मैंने आम देश को आसी शासन कले से कौन कले धीरे धीरे आम देश में प्रभाव विस्तार कले। तो से आमर स्कूल कॉलेज सब गुड़ाक इंग्रेजी भाषार प्रचलन कर। इंग्रेजी पढ़िया शिक्षित गोष्ठी सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा पाइबा सहित से पाश्चात्य संस्कृति प्रति आकृष्ट होबार लगे। जो शिक्षित गोष्ठी मैंने जो मैंने किसी इंग्रेजी पाठ पढ़िले से कौन कले पाश्चात्य संस्कृति प्रति कौन आकृष्ट होते। फल ओडिया भाषा बहुल भाव में इंग्रेजी शब्दर प्रचलन पड़ा। जेहेतु से किसी शिक्षित गोष्ठी थे से जेहेतु इंग्रेजी भाषार प्रभाव से पड़ता तो से जिनस आमर ओडिया भाषा तार प्रभाव पड़ा। ओडिया भाषा किसी इंग्रेजी शब्दर प्रचलन है। यही प्रचलन आहरी व्यापक है परवर्ती काल। तेबे एबे आमर हांडीशाला ठारू स्कूल कॉलेज प्रशासनिक कार्यालय सबुठार इंग्राजी भाषार आधिपत्य को लक्ष्य करहब। माने बर्तमान आम सब स्थान में आम किसी ना किसी कथा कहवा समय इंग्राजी भाषार उच्चारण करुचे बा इंग्राजी भाषा कहूचे। तार किसी उदाहरण देइछन्ति। अर्डरली ताको ओडिया रे आम अर्दली बोली कहूचे। डेपुटी डिपोटी। ग्लास गिलास प्रकृत में ग्लासटा कौन इंग्रेजी शब्द किंतु आम सब साधारण भाव गिलास बोली कहूचु। टेबुल बिस्कुट सीमेंट। 16 शताब्दी रे पोर्तुगीज फरासी दीनामार ओलंदाज प्रभृति जलपथरे वाणिज्य व्यवसाय पर भारत को आसीथिले। ओडिया भाषा रे केतेक पोर्तुगीज शब्दर प्रचलन देखा जाए। उदाहरण स्वरूप सेथिरु केतोटी दिगला। किसी पोर्तुगीज शब्द उदाहरण दि जाइए देख। जेमती कि कौन अलकातरा अल्फिन अलमारी कोबी टांकी तमाकू एमती शब्द गुड़िक पोर्तुगीज मानक परी फरासी ओलंदाज और डिनामार माने वाणिज्य सूत्र में आम देश को आसीथिले मध्य से सब भाषा गुड़िक शब्दावली ओडिया भाषा रे खूब कम। जेमती कि सिमेई सोढ़ा चेरी इत्यादि शब्द गुड़िक आम भाषा रे अछि। तापरे शब्दार्थ शब्द जेउथिरु गढ़ा हुए व्याकरण रे ताको धातु बोली कहा जाए। जेपरी ओडिया भाषा रे मार्क लाग काट चाल देख रख कर पढ़ प्रभृति गोटे गोटे धातु। धातुरु शब्द गढ़ा सहित गोटे शब्दरु अन्य शब्द गढ़ा होता है। नहीं कि धातुरु जमी शब्द गढ़ा जाए से गोटे शब्द आ गोटे शब्द गढ़ा जाए। शब्द गुड़िकर अर्थ प्रकाश करती। फल
कौन सी विषय संपर्क में आमर धारणा होता है। जो शब्द गुड़िक जो गोटे शब्द आउ गोटे शब्द गढ़ा जाए शब्द गुड़िकर किसी न किसी अर्थ थाए एवं अर्थ जाणी द्वारा आमर से शब्द प्रति गोटे कौन विशेष धारणा हो जाए। शब्दर यही अर्थबोध को नहीं तीन गोटी भाग में विभक्त कर गुड़िक कौन गोटे रूढ़ शब्द आउ गोटे यौगिक शब्द आउ गोटे कौन जोग रूढ़ शब्द। प्रथम रूढ़ शब्द पढ़ा जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करिଥାଏ ताहाको रूढ़ शब्द कहुए। शब्द रूढ़ शब्द माने जार प्रकृत अर्थ जोटा से अर्थ प्रकाश करेनि से शब्दटा उच्चारण कले आम गोटे भिन्न अर्थ जानी था। जेपरी व्याघ्र शब्द यही शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ है जे विशेष रूपे आघ्राण करे। व्याघ्र व्याघ्र माने व्याघ्र विशेष रूपे आघ्राण करे मात्र व्याघ्र शब्दटी भिन्न अर्थ बुझाऊे किंतु व्याघ्र शब्द कहले आमे विशेष रूपे आघ्राण करूँ बा विशेष रूपे किसी शुंघी पार्थो सेमती आमे केबे हेले बुझुना। व्याघ्र शब्द कहले आमे एक भिन्न अर्थ गोटे बुझी थाउ ताहा होची कोन हिंस्र जंतु विशेष गोटे हिंस्र जंतु बाघ को आमे व्याघ्र बोली जानी थाउ। सेहीपरि वृक्ष शब्द यार प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ होची जहाको छेदन करा जाए नहीं कि वृक्ष अर्थात कौन जहाँ को आम छेदन कर जहाँ को कटा जाए किंतु आम वृक्ष कहले जहाँ को छेदन कर जहाँ को कटा जाए आम बुझुना। वृक्ष कहले आम गछ को ही बुझी था किंतु यह गछ को बुझाऊे। यह कौन रूढ़ शब्द। तापर यौगिक शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ को जो शब्द प्रकाश करिଥାଏ ताहाको यौगिक शब्द कहती अर्थात पच प्रसक पाचक। पाचकर अर्थ कौन जी पाक करे सी पाचक यह ही शब्दर साधारण अर्थ। सेपरि लेखक पालक नायक प्रभृति शब्द। तापर होची कौन जोग रूढ़ शब्द जो शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ अनेक वस्तु को बुझाइबा संभव हेले मध्य से शब्द गोटे मात्र वस्तु को बुझाए ताहाको जोग रूढ़ शब्द बोली कहा जाए। माने शब्दटा को आम वर्णना कले तार अर्थ भिन्न भिन्न हो पारे किंतु सेटा को आम केवल गोटे शब्दर अर्थ ही आम बुझी। उदाहरण दिया कौन पंकज यह व्यक्तिगत अर्थ है जे पंकरु जात। पंकजर अर्थ कौन पंकरु जे जात से पंकज पंकरु विभिन्न पदार्थ जात हेले सुधा पंकज कहले आम पद्मफूल को ही बुझी था नहीं कि पंकरु कौन खाली पद्मफूल जात हुए पंकरु विभिन्न पदार्थ पोक जोक सब जात हुआ किंतु आम पंकज कहले अन्य किसी बुझुना केवल पंकज कहले आम पद्मफूल को ही बुझी था। तापरे पढ़िबा जुग्म शब्द। ओडिया भाषा रे दुईटी शब्दर संयोजन रे केतोटी शब्द गठित होता है। यह विभिन्न प्रकार होता है। जुग्म शब्द गुड़िक विभिन्न प्रकार होता है। केते गुड़ा देछि देख क नंबर देछि प्राय समार्थक दुई शब्दर संयोग रे गठित जुग्म शब्द समान अर्थ हेतु दुईटा शब्द मिसिक जुग्म शब्द माने गठन हेतिबो। एक प्रकार अर्थ बा पाखापाखि अर्थ बुझाउथबा दुईटी शब्दर समाहार रे केतेक जुग्म शब्द ओडिया भाषा रे प्रचलित जेमती को उदाहरण दिया है आशा भरोसा टंका पैसा हाट बजार देखा चाहा धान चाउल कली कजिया लिपा पोचा दुईटा जाक शब्दर अर्थ समान थी पाखापाखि लेखा होपर ख नंबर पढ़िया विपरीतार्थक बोधक दुईटी शब्द संयोग गठित जुग्म शब्दर उदाहरण माने विपरीत अर्थ बुझाऊ जेमती कि उदाहरण देछि आग पछ दुख सुख पाप पुण्य दबा नबा हानि लाभ प्रभृति। तापर होछि अर्थसूचक बा निरर्थक शब्द संयोग गठित जुग्म शब्द गोटे अर्थ थी गोटे निरर्थक थी अदल बदल अंदी संदी पनीपरिबा पिला पिचिका माने गोटे शब्दर अर्थ अच्छे गोटे शब्दर अर्थ नहीं। तापर घ नंबर होछि द्विरुक्ति द्वारा गठित जुग्म शब्द गोटे शब्द को दुई थर विराम नदी कहवा होछि द्विरुक्ति। यह अविकल दुई शब्दर संयोग हो पारे किंबा सामान्य परिवर्तन कह जाए यथा घर घर खाई खाई थर थर छल छल एमती शब्द गुड़िक धरा धरी
कड़ा कड़ी रखा रखी है। तापर है ध्वनात्मक जुग्म शब्द। केतक ध्वनात्मक शब्द को द्विरुक्ति कले ध्वनात्मक जुग्म शब्द हुए, यथा झम झम, फट फट, खस खस, ग ग, फर फर, फ फ, खट खट, धूम धाम इत्यादि। तापर हूँ देख मन रख, यहाँ समचारित शब्द माने समान उच्चारित होतो कि तार अर्थ अलग थी। केतक शब्द समान भाव में उच्चारित हेले किंबा समान प्रकार उच्चारित हेबा भली मन हेले मध्य सेगुड़िकार कौन अर्थगत किछि पार्थक्य रही है, से अर्थगत पार्थक्य देखा जाए। यही सब शब्द को समाचारित शब्द बोली कह जाए। देख 80 शब्दर अर्थ खंडा, आ गोटे 80 शब्दर अर्थ संख्या। मन रख पिलाने गुड़िक समाचारित शब्द निश्चय तुम परीक्षा पढ़ो। ईश शब्दर अर्थ मालिक, प्रभु बोले ईश्वर, आ गोटे ईश शब्द अर्थ है लंगड़ दंड। कुजन अर्थ खराब लोग, हसो कर दिखाई। दीर्घकार कुजन अर्थ होची पक्षीर राब बा शब्द। तापरे गोलक, गोलकर अर्थ गोलाकार वस्तु, लर ओकार छोट गोलक, तार अर्थ होची वैकुंठ धाम। तापर अच्छे जात, जात शब्दर अर्थ जन्म, आ गोटे जात फास्ट जो वर्गे जो जात है जन्म, अंतस्थ जो जात शब्दर अर्थ है यात्रा बा उत्सव। दिन दर हर्षेकार न, दिन है दिवस, दर दीर्घिकार न, दिन है दरिद्र। स्वाक्षर और साक्षर, स्वाक्षर माने कौन जो दस्तखत करती, सर्वफल अच्छे स्वाक्षर, आ साक्षर है कौन जे लेखि जानी। शिल और शिल, शिल सर दीर्घ शिल है स्वभाव, सर हर्षे शिल है मसला बटा जा पत्थर। तापर यहाँ हूँ कौन अर्थगत पार्थक्य। तापर एबे पढ़िबा विपरीतार्थ बोधक शब्द। केतेक शब्द रही जेगुड़िकर स्वतंत्र विपरीतार्थ बोधक शब्द थाए। केतेक शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्द नच तत्पुरुष द्वारा होता है, जमती कि कौन मेल अमेल, आदर अनादर, आयत अनायत। तेबे विपरीतार्थ बोधक शब्द निर्णय कला बेले मूल शब्द जो पद हेब विपरीतार्थ बोधक शब्दटी से पद हेबा उचित। संस्कृत शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्द संस्कृत और देशज शब्दर देशज हेबा आवश्यक। उदाहरण देख देइछि, मूल शब्द किछि सितरे रहिथिबो, जेमति कि अभिज्ञ अनभिज्ञ रहिला मूल शब्द, असली नकली ल रहिला, आस्तिक नास्तिक, आशीर्वाद अभिशाप, किछि मूल शब्द रहुछि मूल अक्षर। उठाणी गड़ाणी, कठिन कोमल, गली आयली बासिली, जय पराजय, दोषी निर्दोष, नूतन पुरातन, दुखी सुखी, नरक स्वर्ग, पुरस्कार तिरस्कार, भूल निर्भूल बा ठीक, मान अपमान, सुंदर असुंदर बा कुत्सित, हानि लाभ, क्षम अक्षम। पिलाने तुम व्याकरण बहिर प्रथम पाठटी पढ़, निजे बही देखिकी पढ़, ता सहित भिडटी देख, आउ देखिकी जोगुड़ी तुमको बेसी इम्पोर्टाट लगुच से गुड़ निज खातार लेख। रहिले आज एतिकी, धन्यवाद।